علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تزئین و آرائش کے بعد گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر احمد پور سیال میں خصوصی اطفال کے اسپیشل روم کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک حفیظ الرحمان کھوکر سے۔ جی حفیظ بتائیے گا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر احمد پور سیال میں خصوصی اطفال کے لیے تزئین و آرائش کے بعد اسپیشل روم کا افتتاح کر دیا گیا۔ وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان زوار ملک غلام جیلانی آڑتی نے بطور مہمان خصوصی دعا مانگنے کے بعد فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ ہیڈ ماسٹر ماہر ذوالقرنین علی گوندل نے مہمان خصوصی کو ہار پہنا کر خوش آمدید کہا، جبکہ اسپیشل بچوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا۔ ہیڈ ماسٹر نے تشریف آوری پر زوار ملک غلام جیلانی آڑتی کا شکریہ ادا کیا۔ قوت سماعت، گویائی اور بینائی سے محروم بچوں نے تلاوت اور نعت بھی پیش کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زوار ملک غلام جیلانی آڑتی نے کہا کہ خصوصی اطفال معاشرے کی توجہ کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے سازگار ماحول مہیا کرنے پر ہیڈ ماسٹر ذوالقرنین گوندل کا کردار قابل ستائش ہے۔ آج جو مجھے پرنسپل ماہر ذوالقرنین صاحب اور ان کی ٹیم نے جو عزت دی تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو افتتاح کیا یقین کریں بہت زبردست کام ہوا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے، جو انسان خوبصورت کام کرتا ہے رب کی ذات انہی پسند کرتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ خوبصورت کمرہ بچوں کے لیے بنوایا، دیکھیں وہ بچے معذور بچے نابینا جو سن نہیں سکتے، گنگے بہرے، ان کے لیے یہ کمرہ بنا گیا، تو وہاں بچوں کو اچھا ایک ماحول ملے گا، بچے خوش ہوں گے۔ تو میں ماہر ذوالقرنین صاحب اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں آج کے دن کے وجہ سے نہایت شکر گزار ہوں ملک صاحب کا کہ ہماری ریکویسٹ پہ ایک تو تشریف لائے۔ ادارہ کی طرف سے بہترین سماجی خدمات پر زوار ملک غلام جیلانی آڑتی کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن سے بھی نوازا گیا۔ مہمان خصوصی اسپیشل بچوں میں گھل مل گئے۔ بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم بچوں نے بڑے شوق سے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ملک حفیظ الرحمان کھوکھر، NTN نیوز، احمد پور سیال۔ فیصل آباد کے سرکل جڑنوالا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد رضوان عاجز کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے سرکل جڑنوالا پولیس کی ایس پی ٹاؤن جڑنوالا ضیاء الحق کی سربراہی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس اسٹیشن ستیانہ نے کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے 3,65,000 روپے نقد، موبائل فونز، موٹر سائیکلز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ دوسری جانب پولیس اسٹیشن کھرڈیوالا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں خطرناک اشتہاری مجرم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اشتہاری مجرم ندیم مسیح کو دوران گشت رکنے کا اشارہ کیا گیا، تاہم ندیم مسیح اور ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ واقعے کی اطلاع پا کر DSP کھرڈیوالا اور SHO کھرڈیوالا اعجاز احمد رشید ڈار نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور 10 منٹ تک ملزمان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ندیم مسیح اپنے 2 ساتھیوں کی فائرنگ سے موقع پر ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے SP ٹاؤن جڑنوالا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کا خاتمہ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور جرائم پیشہ عناصر کا کلا کما اسی طرح سے مزید جاری رہے گا۔ کیمرہ مین ملک ممتاز کے ساتھ محمد رضوان عاجز، NTN نیوز، فیصل آباد۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، چیچا وطنی تھانہ صدر کی حدود میں کار سمیت اغوا ہونے والے شخص کی لاش برآمد کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے TSQ اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جنید ملک۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ چیچا وطنی تھانہ صدر کی حدود میں پیش ہے، جہاں گزشتہ روز بائی پاس سے افتخار نامی شخص کار سمیت لاپتہ ہو گیا تھا، اور تھانہ صدر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ اغوا کا مقدمہ درج کر لیا تھا، اور چیچا وطنی تھانہ صدر پولیس لاپتہ شخص کی بازیابی میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دی، اور لاپتہ شخص کی کار گزشتہ روز کسووال کی حدود بائی پاس سے برآمد ہوئی تھی۔ افتخار کی لاش جو ہے وہ آج کسووال کی حدود بائی پاس کے ملحقہ جھاڑیوں سے برآمد ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DSP سرکل تحصیل ریاض چیمہ موقع پر پہنچ گئے۔ تھانہ صدر کی حدود میں جرائم اور قتل و غارت کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب سے فوری نوٹس لے کر جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ اپڈیٹ کر رہے تھے جنید ملک۔
आपको बताएं कि तहसील कबीरवाला सस्ता बाजार मंसूबे से महरूम है। जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ता बाजार नहीं लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बैनर के ज़ेर साया एक स्टॉल तो लगाया गया है, मगर आवाम के लिए यहाँ के किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं हैदर शेर की इस रिपोर्ट में। जी, रमज़ान शरीफ के शुरू होते ही फ्रूट सब्ज़ी करियाना के स्टॉल मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ज़ेर साया बैनर के ये स्टॉल लगा दिए गए हैं, मगर इनका कोई फ़ायदा कबीरवाला की आवाम को नहीं है। स्टॉल पर मौजूद दुकानदारों का कहना था कि सब्ज़ी मंडी में हमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जा रही और यहाँ पर करियाना का जितना भी सामान है वो भी हमें किसी भी सस्ते दामों ना मिला है, ना ही लोग इससे मुफीद हो रहे हैं। अगर बात की जाए सब्ज़ी की, तो सब्ज़ी मंडी में आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ 1 किलो में 20 से 30 रुपए का इजाफा भी कर दिया गया है। कबीरवाला की आवाम का कहना है कि कबीरवाला में भी एक ऐसा स्टॉल मौजूद होना चाहिए, बाज़ार होना चाहिए जिससे हमें सस्ते दामों चीज़ें मिल सकें, क्योंकि कबीरवाला में इस बार कोई भी हुकूमत की जानिब से स्टॉल ना ही लगाया गया है। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। उधर बहावाना में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर टेन्योर सफीउल्लाह गोंदल की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज चीनी स्टॉल कायम कर दिए गए हैं। स्टॉल से चीनी 130 रुपए फी किलोग्राम मिलेगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अफजल रबाना। जी अफजल, बताइए कितना फ़र्क देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बौना में वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर टेन्योर सफीउल्लाह गोंदल की हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शहरियों को चीनी के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर स्टॉल कैम्प किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बौना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, यहाँ पर कितने स्टॉल कैम्प किए गए और चीनी का रेट क्या है स्टॉल पर? जी, भवाना में, तहसील भवाना में सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए हमने 3 जगह पर जो है वो स्टॉल लगाए हैं। उसमें एक ये न्यू लारी अड्डा जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इसके अलावा एक लाल चौक में है और तीसरा जो है वो रेरी बाज़ार में है। तो गवर्नमेंट की ये अच्छे इक़दामात में से एक ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक में उन्हें जहाँ तमाम अशियाए खुर्दोनोश की जो फराहमी है वो सस्ते दामों यकीनी बनाई जाएगी, वहाँ चीनी की ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तौर पर एक रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। और उसमें जहाँ बाज़ार में चीनी जो है वो 165-160 रुपये किलो है, यहाँ चीनी जो है इन तीनों पॉइंट्स पर आपको 130 रुपये किलो मिलेगी। इसलिए मैं आवाम से ये अपील करती हूँ लोगों से कि वो यहाँ आएँ और इन पॉइंट्स से जो है वो चीनी की ख़रीदारी करें। जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर बाना मैडम सादिया जमाल की बात सुनी। इनका ये कहना है कि ओपन मार्केट से यहाँ पर 30 से 35 रुपए जो चीनी है वो कम रेट पर दस्तियाब है। तो मैं शहरियों से अपील करती हूँ वो यहाँ पर स्टॉल का रुख करें और यहाँ से जो है वो चीनी खरीदें और मुस्तफ़ीद हों। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिहानिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं। आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के सुपुर्द कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी इमरान अली से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल जहानिया में महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फ़ाल हो चुकी हैं और अपने कमरों तक महदूद हो चुकी हैं। जहानिया में चीनी गवर्नमेंट की तरफ से 130 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद 160 से 70 रुपये किलो बेची जा रही है। चिकन जो पहले 350 रुपये किलो था अभी 650 से ऊपर बेचा जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जहानिया शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो गैर फ़ाल है। इसी जो चीनी है वो 170 रुपये मिल रही है और इसी तरह जो चिकन है वो 600 से 650 रुपये मिल रहा है। अभी रमज़ान शुरू हुआ है और महंगाई इतनी रूज पे है, बाद में पता नहीं क्या होगा। जबकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ये ना जुर्माने कर रही हैं ना ये बाज़ारों में गश्त कर रही हैं। अगर ये फ़ाल हों, अगर ये गश्त करें, ये जुर्माने करें तो शायद महंगाई जो है वो काबू में आ जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान आ चुका है और महंगाई कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। हमारी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से गुजारिश है कि फ़ौरी इसका नोटिस लेकर कमेटियों को फ़ाल किया जाए ताकि शहरियों को सस्ती चीज़ें मैसर हो सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का सहाफ़ी बरादरी के हमरा सस्ते सहूलत रमज़ान बाजार का दौरा किया। DC ने रमज़ान बाजार में अशिया की क्वालिटी, कीमतों समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं मियां मोहम्मद अफजल शहजाद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का सहाफ़ी बरादरी के हमरा सस्ते सहूलत रमजान बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि रमजान बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलोग्राम फराहम की जा रही है। चिकन 20 से 22 रुपए, बीफ और मटन मार्केट से 50 रुपए फी किलोग्राम तक सस्ता फराहम किया जा रहा है। अशिया खुर्दनी, मदालें, सब्जियां, फल समेत मशरूबात भी मार्केट से कम नरफों पर
दस्तयाब है। तमाम किस्म के चावल 20 से 25 फी किलोग्राम और टोटा चावल 40 रुपए फी किलोग्राम मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब है। शहरियों को सस्ते रमजान बाजारों में आटा 800 रुपए फी थैला फराहम किया जा रहा है। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और बाजार इंचार्ज सस्ते रमजान बाजारों की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिली इंतजामिया अवामुल नास को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर कायम किए जाने वाले सस्ते रमजान बाजारों से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। तमाम सस्ते रमजान बाजार में बुजुर्ग अफराद के लिए सामान उठाने के लिए मददगार एहलकार भी तैनात किए गए हैं। रमजान बाजारों में शिकायत काउंटर्स, मेडिकल कैंप, सफाई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रमजान बाजार में खरीदारों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। सस्ते रमजान बाजार में मर्द और खवातीन के लिए नमाज पढ़ने का अलग इंतजाम मौजूद है। सहाफी बरादरी ने सस्ते रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजाम करने पर जिली इंतजामिया की तारीफ की। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। रमजान मुबारक के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के हवाले से DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में SSP ऑपरेशंस, जोनल SPs, तमाम SDPOs और SHOs की शिरकत की है। आपको इस वक्त अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। रमजान मुबारक के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के हवाले से DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में SSP ऑपरेशंस, जोनल SPs, तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की है। खानेवाल में भी रमजान सस्ता बाजार का इनेकाद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कीमतों के तयन समेत मयारी अशिया का जायजा भी लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान रसूल से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल स्टेडियम खानेवाल में, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की हदायत पर सस्ता रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाया गया, जहाँ पर एक की छत के नीचे तले तमाम अशिया खुर्दनोश के साथ गोश्त, सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह सस्ते दामों यहाँ पर फ़रोख्त हैं। जहाँ पर रमज़ान मुबारक में शहरी सस्ते दामों पर यहाँ पर अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ें खरीद सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी हैं फ़ारूक, बात करेंगे उनसे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत की जानिब से लगाया गया रमज़ान बाज़ार, उसमें सहूलत भी दी गई है, चीनी पर भी सब्सिडी दी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, खानेवाल ज़िला में भी पूरे पंजाब की तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पे सस्ता सहूलत रमज़ान बाज़ार शबीर स्टेडियम में उसका इनेकाद हो चुका है। तो इसमें इस तरह है जी, यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सब्ज़ियात और जो फ्रूट्स हैं, जो भी इसेंशियल या ज़रूरी हैं, वो मार्केट रेट से 5 से 10 रुपए सस्ते मुहैया किए जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में और अच्छी मिकदार में। इसके साथ साथ चीनी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जो डेली बेसिस पे रिटेल का रेट है 155 से 160 रुपए, उसको कम करके 130 रुपए पर केजी पे चीनी जो है वो खानेवाल की आवाम के लिए मुहैया की जा रही है। जी, जैसे कि आपने मार्केट कमेटी की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हुकूमत के पंजाब पर यहाँ पर चिकन, गोश्त, उसके साथ मटन है, बीफ है और उसके अलावा सब्जी है, फ्रूट है, वो तमाम सस्ते दामों यहाँ पर शहरों को मैसर है। तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब जो चीनी के ऊपर सब्सिडी लगाई गई है, जो तकरीबन 30 रुपये किलो के ऊपर सब्सिडी दी गई है, जिसमें शहरी अपने शनाख्ती कार्ड पर 130 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीद सकेंगे। उनका कहना था कि तमाम शहरी यहाँ पर आए, रमज़ान मुबारक की खरीदारी करें, यहाँ पर सस्ते दामों तमाम अशिया पर मुयसर है शहरियों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि मंचनाबाद में भी माह रमजान करीब आते ही महंगाई का तूफान आ चुका है। दीगर अशिया खुर्दनोश के साथ चिकन की कीमतों को पर लग चुके हैं। चिकन 600 से 650 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नौमान से। जी नौमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान आते ही चिकन की कीमतों को पर लग गए, मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूटने लग गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, माह रमज़ान करीब आते ही जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है उनमें इजाफा हो गया है, और उसके साथ साथ चिकन जो है इसकी कीमतों को भी पर लग गए हैं। अब 600 रुपये किलो जो है वो गोश्त जो है वो चिकन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो अब गरीब आदमी जो है वो किस तरह से इसको ख़रीद सकता है? आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से ही बाहर हो चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, इसकी रेट को कंट्रोल करें, कम करें, ताकि आम आदमी को भी ये इसकी दस्तरस में हो और आसानी से ख़रीद सके। जी, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत वक्त से अपील है कि इसकी कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम सुख का चैन ले सके। जी
आगे बढ़े आपको बताएं कि सियालकोट माह रमजान मुबारक आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। दुकानदार मुनाफाखोरों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अली से। मलिक अली, आगाह कीजिएगा। दूसरे शहरों की तरह सियालकोट के अंदर भी रमज़ान की आमद है। सियालकोट के अंदर एशिया हुर्दनोश की चीज़ें आसमानों से बातें करना शुरू हो गई हैं। लहसुन की कीमत की बात की जाए तो 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, और किन्नू की कीमत की बात की जाए तो वो 800 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, ये उनसे जान आदमी तो पहुँचे से दूर होगी ना, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये केला हो गया, किन्नो हो गया, या सब्ज़ी वगैरह होगी, ये तो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर कर दिया। पेट्रोल की कीमत देख लें, दूसरी चीज़ों की कीमत देख लें। मौसम में आके, इस सीज़न में आके, रमज़ान में आके कोई भी बंदा कैसे सर्वाइव करता है, ये बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी से पूछ ले, हर बंदा परेशान है कि क्या लेके जाए और क्या ना लेके जाए। बच्चों को सहरी कैसे करें। इफ्तार रहेगी बेगम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से बराए मेहरबानी, जिस तरह आपने ये रोड खुले किए हैं, दुकानों की तोड़ फोड़ की है, तजावजात के साथ ऑपरेशन किया है, उस तरह इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे, ताकि रेट लिस्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट की रेट है उसके ऊपर लोगों को चीज़ें मिले। हमने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस चीज़ का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जाता है। जो रेट लिस्टें मुकर्रर की गई हैं, इनसे तजावुज़ कर एशिया हुर्दनोश की चीज़ें जो है वो सेल की जा रही हैं। सियालकोट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और AC सियालकोट इस चीज़ का फौरी नोटिस लें। जी, आपको बताएं कि रमज़ान का बाबरकत महीना नेकियों और रहमतों के साथ लज्जतों का भी खजाना है। मज़ेदार खाने दस्तरखान की जीनत बनते हैं। सहरी में खजरा और फेनी लाजमी समझी जाती है। हैदराबाद में इसकी तैयारी उरूज पर है। देसी घी और मक्खन का इम्तिजाज सफ़ेद फूल की मानंद मैदे के बने पेड़े गरम गरम तेल में तलने से जर्द जाल की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। तैयारी हो रही है सहरी की रौनक मज़ेदार फेनी की। फ़ज़ाओं में फैली भीनी भीनी खुशबू रमज़ान की आमद की नवीद सुना रही है। इनके कारीगर पंजाब से आए थे, इसका नाम क्या है, और ये बहुत उससे बनी जाती है और बहुत लजीज लगती है सहरी के टाइम खाने में लोगों को। हैदराबाद की पूरे सौगात है ये, और दूध और इसका ना घी से और मैदे से तैयार किया जाती है। शहरी कहते हैं कि सहरी में कजला और फेनी ना हो तो दस्तरखान अधूरा सा लगता है। अब आपको पता है माशाल्लाह रमजान मुबारक की आमद है, तो रमजान जो है वो फेनी और खजले के बगैर ये समझ लें कि सहरी अधूरी होती है। तो इस तरह से फेनी की खरीदारी के लिए आए थे। माशाल्लाह रमजान शरीफ जो है वो करीब है, और फेनी के बगैर जो है वो रमजान सहरी जो है फीकी हो जाती है समझे, इस वजह से फेनी खरीदने के लिए आए हैं। रमज़ान की ये मीठी मीठी सौगात खाने में जितनी मज़ेदार है, सेहत के लिए इतनी ही फ़ायदेमंद भी है। कैमरामैन रिजवान रई के साथ अजहर रिजवी, NTN न्यूज़ हैदराबाद। मीडियाई से खबर शामिल करेंगे, जहां माह रमजान आते ही महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। हर चीज़ महंगी होने के बाद शहरी सख्त परेशान दिखाई देने लगे। तफसीलात मीडियाई से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। तैयारी में रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फ्रूट, सब्जियां, दालें और गोश्त समेत रोज़मर्रा की घरेलू इस्तेमाल में आने वाली खाने पीने की अशिया के रेट आसमान से बातें करने लगा। गरीब मजदूर तबका सख्त परेशानियों से दो चार हो गए। शहरी कहते हैं कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मटियारी के शहरियों ने हुकूमत वक्त और ज़िले इंतजामिया से महंगाई पर कंट्रोल, आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। आरिफ आलम में डेंगू मुहिम जारी है। डेंगू के खिलाफ आगाही मुहिम में अहम शख्सियात ने शिरकत की है। मजीद देखते हैं हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में डेंगू के हवाला से सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद तारक अलीम की सदारत में महकमा सेहत के अफसरान, रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज मोहम्मद मुरसलीन, इनकी टीम, गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल नंबर 1 के हेड मास्टर हाकनवाज, दीगर उस्ताज़ा व तलबा समेत मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह ने कहा, डेंगू खतरनाक मगर काबिल इलाज मरज़ है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सफाई का खास ख्याल रखें। डेंगू के खात्मा के लिए हुकूमती इक़दाम मुमकिन नहीं, अवाम के तावन से इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिवाला। और अब खबर यह है कि मुल्क भर में लहसुन की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जहां किसान इस साल की पैदावार पर खुश नजर आते हैं और जल्द ही मार्केट में नई फसल दस्तयाब होगी। मजीद बता रहे हैं मलिक अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक लहसुन के खेत में मौजूद हूँ, जहाँ किसान अपनी लहसुन की फसल को तैयार करने में मसरूफ हैं। आप देख सकते हैं कि लहसुन के खेत खुशबू से महक रहे हैं और किसानों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असां बहु खर्चा किती खड़े से थूम दे बिल्कुल पोटाश लोड़े से जिंगू सप्राया बहु महंगे किती खड़े से गवर्नमेंट को असां यादूं मेहरबानी करो अच्छा रेट मिलिया वने बेहतरीन रेट मिलिया वने। जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, इनका कहना है कि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी है, अगर हमें अच्छा रेट मिले तो हमें बहुत फायदा होगा। जी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बागर सरगाना में मुनफरिद और पुरस्कार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सीनियर सब्जेक्ट टीचर्स मुमताज साहब की रिटायरमेंट के मौके पर उनके शागिर्दों ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। मजीद अहवाल बता रहे हैं अख्तर अब्बास सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बागर सरगाना में सीनियर सब्जेक्ट टीचर मुमताज साहब की रिटायरमेंट के मौका पर इनके शागिर्दों ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें जिला खानेवाल के नामवर अस्ताजा, डॉक्टर, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ये तकरीब अपनी नवीयत की मुनफरद मिसाल थी, जहाँ उस्ताद को इनके शागिर्दों ने खराज तहसीन पेश किया। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि उस्ताद को इस तरह से फूलों के साथ, दुआओं के साथ जो है वो रुखसत किया जाना, और ये इंशाल्लाह बहुत यादगार है। स्कूल के प्रिंसिपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद ने खास साहब की इल्मी तदरीसी खिदमात को सराहा। आज की इदारा हाजा में एक बड़ी खूबसूरत पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जो कि सर मुमताज़ साहब SSS अपनी सर्विस को पूरा करने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं, और उनके जो एक्स स्टूडेंट है एलुमनाई, उन्होंने एक जो है ना वो बनाई है, तंजीम बनाई है, और उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से उनको खराज तहसीन पेश किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। मुकर्रिरीन का कहना था कि मुमताज़ साहब ने हमेशा तुलबा की बेहतरीन तरबियत और किरदार साजी को अपना मिशन बनाया और इनकी तालीमी खिदमात नाकाबिले फरमोश हैं। तकरीब के आखिरी लम्हात जज्बाती और यादगार बन गए, जब मुमताज़ साहब के शागिर्दों ने अपने उस्ताद के साथ गुजरे लम्हात को याद करते हुए इनके हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ये दरअसल मोहम्मद मुमताज़ साहब जो यहाँ पर SSS हैं, और वो 31 मार्च 2025 को रिटायर हो रहे हैं, उनके एजाज़ में मुनाकिद की गई थी, और ये उनके स्टूडेंट की तरफ से इसका इनाकाद किया गया था, जिसमें उनके कोलीग्स, उनके टीचर और उनके दोस्तों को इनवाइट किया गया था। शागिर्दों का कहना था कि मुमताज़ साहब ने सिर्फ एक बेहतरीन उस्ताद थे, बल्कि एक रहनुमा और मुरब्बी भी थे, जिन्होंने इनकी ज़िंदगियों पर गहरा असर छोड़ा। तकरीब के अख्ताम पर मुमताज़ साहब का शुक्रिया अदा किया कर इनके आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। ये तकरीब न सिर्फ एक उस्ताद की खिदमात का एतराफ़ थी, बल्कि माशरे में उस्ताज़ा की कद्र व मंज़लत का भी अमली मुज़ाहिरा थी। कैमरा टीम के हमरा अख्तर अब्बास सियाल, NTN न्यूज़, अब्दुल हकीम। और अब आपको बताएं कि कमालिया में नवाही इलाके बस्ती मोहल्ला में ऑल पंजाब घुड़ डांस मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसे देखकर शायकीन मेला खूब लुत्फानंदोज हुए। मजीद जानते हैं असद राजपूत से। जी बिल्कुल, कमालिया के नवाही इलाका बस्ती मोहल्ला में जो है वो ऑल पंजाब घोड़ा डांस मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर एक ज़िम्मेदार मौजूद है जो अपने घोड़े लेके आए, उनसे बात करते हैं। बताइएगा ये जो खेल है हमारी सकाफत कैसा, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक बहुत पुराना और कदीमी एक रवायती खेल है, और जो बहुत अब कम होता जा रहा है। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने हार्स एंड कैटल शो में इसको भी परफॉर्म करवाया, घोड़ा डांस हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये एक फ्री ऑफ कास्ट एंटरटेनमेंट है जो लोगों को दी जाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे और इसकी फेडरेशन बनाए और इसको तवील अरसे तक चलाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका भी यही कहना है कि ये कि बेहतरीन खेल है, लोग इससे इंजॉय करते हैं, उनके चेहरों पर रौनक आती है, और जो दूरियां हैं वो लोगों में ख़त्म होती हैं, उनको मिल बैठने का बहाना मिलता है। तो हुकूमत इस प्रोग्राम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे ताकि लोगों को मिल बैठने के मौके मैसर आ सकें। जी, इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।